Please come. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Have your seat. Thank you, sir. Introduce yourself. My name is Deepshika. I belongs to Lakhisarai district. I have done my matriculation from Vidya Niketan, Patna, and my intermediate from Devsangha National School, Devgar. After that, I have completed my graduation in BA History Honours from St. Xavier's College, Ranchi, and my post graduation in same discipline from IGNOU. My hobbies include cooking and writing. Why do you want to join Patna High Court? So Patna High Court is one of the most prestigious government organization, and it is working in Patna High Court is like a prestigious job, work and personal life balance, having a lucrative salary, and there are many things that I want. I Okay. want to join. Okay. When was the Supreme Court established for the first time in India? So Supreme Court established in 1773 in Calcutta. Which act had led to the establishment of Supreme Court? Act of 1773. Okay. And the High Courts Act वो कब पास हुआ था? Sir, High Court. Sorry, sir, I'm unable to recall right now. Are you aware that Jharkhand was separated from Bihar? Yes, sir. कब हुआ था? In 15 November 2000. What adverse impact had it created on Bihar's economy? Yes, sir. Jharkhand is a rich source of natural resources like coal, that is called black diamond, and and many more resources, that is aluminium. And there are many industries in Jharkhand. The first industries was set up in Jamshedpur in 1907, and Bihar lacks all this. So after the division of Bihar and Jharkhand, all the economic development gone with the Jharkhand, and Bihar lacked in it. Do you think that over the last 2 decades, since Jharkhand has been created, do you think that the goal for which the state was established that has been fulfilled? No, sir, I don't think that has been fulfilled. Why so? So because of the policies of the government, not any government that formed in Jharkhand worked properly for the welfare of the people and welfare of the Jharkhand. Every government, every politician worked for their own interest. All of them were maximum of them involved in corruption, and many government personalities also supported the government in a bad thing. Okay. What do you mean by entering budget? So entering budget passed by central or state government in for. Why it is termed as entering? Sir, pardon? Why it is termed as entering budget? Why not full-fledged budget? Sorry, sir. Okay. Okay, please tell about Article 143. What is that? Article 143 is the advisory jurisdiction of Supreme Court. Supreme President can advise the Supreme Court under this. Okay. How are the judges of High Courts appointed? Sir, High Court judges of High Court is appointed by a collegium system that consists of Chief Justice of India and other two judges appointed by Chief Justice of India. सबसे पुराना हाई कोर्ट भारत का कौन सा है? Ma'am, the oldest High Court of India is in Calcutta, Madras, and Bengal. Okay, sorry, ma'am, Calcutta, Madras, and Odisha. Odisha. Yes, ma'am. किसी भी उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन? Ma'am, it is in Hindu. Sorry, ma'am, I'm unable to recall it. सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बताइए कौन सी पहली? Ma'am, her name starts with Indu. आप श्योर है? Sorry, ma'am. सेवा Article 124. Article 124 deals with the High Court establishment in India. Okay. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास है। चलिए आर्टिकल 32। यस मैम। इसके बारे में आप बताइए। Article 32 is basically the rights. If the fundamental rights of any citizen is violated or infringed, then he can go to Supreme Court
through writs or demanding its fundamental right to be restored. Okay, this includes the habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. Quo warranto के बारे में आप बताएं. If a person is not, if any official is not holding its office in a proper manner and infringing with the right of the individual, then Supreme Court then court can tell the person to obey his official duty in proper manner. भारत में बहुत सारे मुकदमे होते हैं, yes, है ना? Yes, और टाइम पे उसका निष्पादन नहीं हो पाता है, कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? कई साल तक लंबित होते हैं मामले. Yes, ma'am. Ma'am, this is related to pendency of cases in India. First reason behind this is the ratio of justice or judges compared to the cases in India. The ratio of judges is quite low as compared to the number of cases in India. And second thing is because of lack of amenities, necessary amenities that has been provided to judiciary, government should do a proper. Okay. What is Visakha guidelines? I have read it, but ma'am, may I try? This is related to women against any exploitation and exploitation or abuse of women. What is the difference between the pardoning power of president and governor? Ma'am, president enjoys the full, that is the 5 type of pardoning power, but governor lacks all the pardoning power. Governor lacks one pardoning power. Which one is that? Ma'am, he cannot set a person free. What is commute? Ma'am, commute is basically the pardoning power of the president, in which he can in which he can may I in Hindi? Yeah, please. Ma'am, pardoning power of president commute is basically जब rigid punishment को कम कर दिया जाता है. Okay. Tell us that what is the weakest aspect of your personality? Yes, ma'am. Ma'am, I fear public speaking sometimes. Or stage. How will you serve the stage? Ma'am, once I am on stage and started speaking, it vanished. But before once you are in the service, you will have to deal with many people. How will you overcome your fear? Ma'am, I am trying to overcome it through interacting many people or with my friends. Okay. What is your strongest point? Ma'am, strongest point is I am honest, I am laborious, hardworking, and always eager to know the new thing. Thank you, Deepshikha. Thank you, ma'am. Deepshikha ji. Yes, sir. Very excellent. The performance was, आपके डैप को हम लोगों ने स्कैन किया. Yes, sir. आपका मॉक 30 मिनट से लगभग ऊपर चला है. You speak well. You are a polite speaker. एक चीज हम लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक नोट किया. Your tone is very polite. इसमें आपको नंबर मिलेंगे क्योंकि वहाँ सभी सीनियर लोग होंगे. सीनियर लोग जो है वो ऐसे स्पीकर को पसंद करते हैं इंटरव्यू में जो पोलाइट स्पीकर हैं. एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इट अपीयर्ड, मतलब थ्रू आउट एक दिखाइए कि यू आर पोलाइट स्पीकर. योर बॉडी लैंग्वेज इज गुड, योर फेशियल एक्सप्रेशन इज वेरी गुड, यू स्पीक वेल. आपका नॉलेज बेस भी बहुत अच्छा है. आपसे बहुत सारे एरिया से सवाल पूछे गए हैं और इट इज नॉट इजी कि आप इतने सारे एरिया से आप आंसर कर पाए. ये आवश्यक नहीं है, वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. कुछ एरिया है जहाँ की आपको दीपशिखा जी, आपका इंटरव्यू किस दिन है? सर 8 फरवरी. 8 को है, तो अभी आपके पास टाइम है. थोड़ा जो है आप इस पर काम कीजिएगा. पहला तो यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जो आपको प्रेशर में डालने के लिए था. ठीक है, तो वहां पर ये जरूरी होता है कि आप कॉन्फिडेंस का डिस्प्ले कर उसके डायरेक्शन को आप ले जाइए पॉजिटिव की ओर. जैसे 3-4 एग्जांपल्स है. एक सवाल था कि झारखंड बिहार से अलग हुआ तो क्या उससे बिहार को नुकसान हुआ या झारखंड को नुकसान हुआ. दैट वाज अ ट्रैप. वो ट्रैप था बिछा हुआ. वहां आपको ध्यान रखना है कि वहां का भी आंसर बहुत सारा पॉजिटिव्स निकल के आ सकता है. Yes, sir. बहुत सारा पॉजिटिव्स निकल के आ सकता है. जरूरी नहीं है कि हमारा व्यू उस पर नेगेटिव व्यू, जरूरी नहीं है.
मान लीजिए एडवर्स भी है, तो उसमें भी ओपनिंग सेंटेंस को आप कर सकते हैं पॉजिटिव। मतलब यू ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट क्वेश्चन एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि अगर उस पे आपका आंसर एडवर्स होता है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे जो एडवर्स नेचर के होंगे, एंड दैट वुड नॉट बी कंफर्टेबल फॉर यू। फर्स्ट। सेकंड देयर वाज कि अशोका और अकबर में आपको चूज करना है, दैट वाज आल्सो ट्रैप। यू कैन नेवर अफोर्ड टू टेक साइड्स रिगार्डिंग अशोका एंड अकबर। यू डिड, और उसके बाद हम लोगों ने तो आपको आसानी से छोड़ दिया, लेकिन वहां पे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स हो सकता है उस एक सेंटेंस को पकड़ लेंगे और उसके बाद बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस बन जाएंगे। यू अंडरस्टैंड, यू नो, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरा था बिहार का प्रॉब्लम, वह क्वेश्चन ट्रैप था वो। बिहार के प्रॉब्लम में आपको वैसे प्रॉब्लम को देना है जैसे पॉपुलेशन आपने बोल दिया, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस बन जाएंगे वहां पर। यू कैन से फ्लड, यू कैन से ड्राउट, वो ऐसा एक प्रॉब्लम है जो हर कोई जानते हैं, और वो आप समझ सकते हैं, उसमें ट्रैप नहीं बिछेगा। लेकिन पॉपुलेशन आप जैसे ही बोल दो ना, तो बहुत सारे इससे सवाल बन जाएंगे, और वहां पर आपके लिए उतना कंफर्टेबल स्थिति नहीं होगा। एक हाइलाइट आपके इंटरव्यू का रहा, आपने जो पोएम रिसाइट किया, दैट वाज वेरी एक्सीलेंट। आपको उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, वी ऑल वर वेरी प्लीज्ड, एंड द वे यू आपने उस पोएम को जैसे बोला फ्रॉम योर हार्ट, यू अंडरस्टैंड, ऑसम, दैट वाज वेरी गुड ऑन दैट फ्रंट। शुरुआत में लगा कि कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा लो है, थोड़ा-सा लो था, लेकिन जैसे-जैसे इंटरव्यू प्रोग्रेस किया है, तो वी रियलाइज्ड कि यू हैव गेन्ड इन कॉन्फिडेंस, और धीरे-धीरे वो कॉन्फिडेंस आया। उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी जब तक आपका एक्चुअल इंटरव्यू है, थोड़ा-सा आप मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जो ये फ्लो में अच्छा हो जाए आपका फ्लो। आप बहुत अच्छी स्पीकर हैं, और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा-सा फ्लो बनाने के लिए मिरर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो बनाकर उस पर आप कोई भी टॉपिक पे एक्सटेम्पोर बोलिएगा, आपको फ्लो आ जाएगा। आपका फ्लो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती हैं, हिंदी भी अच्छा बोलती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा फ्लो के लिए आप काम कर लीजिएगा। जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उस पे ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 जगह ऐसा लगा कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, सो यू ट्राई टू ऑप्ट फॉर हिंदी। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मीडियम क्या है, आप क्लियर कर लीजिए राइट एट द बिगिनिंग, इट वुड बी फार मोर एडवाइसेबल। Sir, I'm quite comfortable in English, but I'm not fluent in English. यू आर फ्लुएंट, वी नोटिस्ड यू आर फ्लुएंट। कोई-कोई ऐसा जगह है जहाँ की आपको जो उसके वर्ड्स होते हैं, वह चूँकि आपको उस वक़्त ध्यान नहीं आ रहा होगा, तो आप हिंदी में बोलने का प्रयास कर रही थी। उसके बारे में ना एक अपना ये कर होमवर्क कर लीजिए कि इंग्लिश और हिंदी, बाइलिंगुअल भी आपका बहुत अच्छा है, उसमें दिक्कत नहीं है। यू स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश, ठीक है। जैसे मान लीजिए एंटरिंग गवर्नमेंट है, जो एंटरिंग बजट है रादर, यह भी आया हुआ है, 1-2 दिन पहले ही आया है, इसको चेक कर लीजिएगा। ये सबसे क्वेश्चन बनेगा, आपको ये अच्छे से कर लेना है। उसके अलावा जो कुछ फैक्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए, तो वहाँ पर फैक्चुअल एरर आपको नहीं करना है। जैसे बिहार में कितने महाजनपद हैं, वहाँ वो कितने हैं, तो 3 है शायद, इफ आई एम करेक्ट। Yes. तो आपका वो 4 आया था, तो वो ध्यान रखिएगा। Sorry, sir. जज का नाम जब भी बोलिएगा तो ऑनरेबल ज़रूर लगाइएगा। जो भी सीनियर लोग हैं, तो वहाँ पर श्री ऑनरेबल, इससे क्या होता है कि वह अच्छा लगता है सुनने में, वो एक तरह से सम्मान की भावना हो जाती है। बैकलॉग ऑफ केसेस से जुड़ा एक सवाल आया था, वहाँ पे भी वह एक तरह से ट्रैप था आपके लिए, तो उसमें ऐसा ही पॉइंट दीजिएगा जो माइल्ड हो, क्योंकि अगर आप ऐसे पॉइंट दे दीजिएगा जो सेंसिटिव हो, तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस बन जाएँगे। सो इट इज़ बेटर कि आप ऐसे ही पॉइंट दीजिए जो माइल्ड हो, ईज़िली आप उससे बाहर निकल सकें। Sir, whatever points. पॉइंट्स बैकलॉग में आप ये दे सकते हैं कि जो जज हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, ये आप कर सकते हैं। और जो बेंचेस हैं उनको एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ये सब बोल के ना, माइल्ड पॉइंट बोल के आप निकल सकते हैं। Sir, may I point also that establishment of Supreme Court apart from Delhi? दैट इज़ अ डिबेटेबल इश्यू, क्योंकि उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का पोजीशन है, वही अभी जो है इतना क्लियर नहीं। सुप्रीम कोर्ट इज़ अपोज्ड टू एनी बेंच बियॉन्ड दिल्ली। ओके, तो वही चीज़ है कि माइंड में ही रखिए, ज़्यादा अच्छा है। आपकी हॉबी है कुकिंग, उससे कुछ सवाल पूछे गए थे, परहैप्स यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल ऑन दैट क्वेश्चन, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। Sir, actually, I have learned cooking 1 year before from Okay. 2023. नो इश्यू विद दैट। आप राइटिंग रखिए। हाँ, हॉबी चेंज करिए। एक होमवर्क हॉबी रखिए। होमवर्क आप कर लीजिएगा। 2 हॉबी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल यू आर अ वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट, कॉन्फिडेंस को थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए। आप में कॉन्फिडेंट इनहेरेंटली है, लेकिन होता है कि मॉक इंटरव्यू के क्रम में थोड़ा-सा नर्वसनेस आया हो। वी अंडरस्टैंड वेरी वेल। जैसे आप इस साइड आ जाइए, हम लोग उस साइड चले जाएँ, तो हम लोगों की स्थिति भी शायद वही होगी। तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल, लेकिन आप उस पे थोड़ा काम कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल वेरी एक्सीलेंट। ठीक है, ओवर टू पूजा मैम। आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं। सर ने भी कहा, हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया। कुछ चीज़ों पे आपको
काम करना है, थोड़ा सा बस ड्रेस अप कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। और चेयर पूरा आप कवर करके बैठेंगे, वहाँ चढ़ेंगे और आप पीछे चेक चाहिए जैसे 90 डिग्री पे एकदम ऐसे बैठना है। हाथ आपका सही है, हाँ हाथ थाई पे रहना चाहिए। और एक चीज है, हम लोग की तरफ से सजेशन है, आप बाल खुला अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है बाल आपका खुला है तो, लेकिन वहाँ आपका बाल बंधा हुआ होना चाहिए। ओके मैम, पोनी बना लीजिए, जैसा भी हो पार्लर से करवा लीजिए, जुड़ा करवा लीजिए, खुला हुआ बाल मत जाइएगा। ठीक है, बाकी आपने क्या पहना है ये मुझे दिख नहीं रहा है, टॉप से लेंगे पर मैम अगर टॉप्स है तो ठीक है, वैसा तो ठीक है, टॉप्स नहीं चेंज करो, टॉप्स पहन लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लटकने वाला चीज नहीं पहनना है। और एक आप बहुत अच्छी कैंडिडेट है, जितनी बातें बस सर ने बताई है उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। बिहार के राज्यपाल का नाम आप जैसे कि बता रही थी, तो सब में जो भी रिस्पेक्टेड वर्ड है लगा के बोलना है, श्री है, ऑनरेबल है, मतलब जो भी है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। और आप जब यहाँ आई थी हॉल में, इस रूम में, तो आपने गुड मॉर्निंग बोला था। अगर आपका इंटरव्यू 12 बजे के बाद है तो गुड आफ्टरनून बोलना है, इसके पहले का गुड मॉर्निंग बोलना है। ओके मैम, किस चीज का ध्यान आफ्टर 3 p.m. 12 p.m. 3 afternoon. Ma'am, it is expected that interview will start. There is a rumor regarding that, okay? That whenever you meet a person for the first time, you say good morning, right? Yes. No, don't follow that, okay? Just follow the rule. After 12 p.m., it is good afternoon, no matter what. ठीक है? उससे पहले good morning, okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. है ना, इस चीज का बस छोटी छोटी बातों को आपको ब्रश अप करना है। आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट है और हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। Thank you, ma'am. ठीक है ना, ओवर टू भावना ना, सिलेक्शन के बाद आपको बुलाएंगे फिर इस शो पे। दीपिका जी, you are a very excellent writer first of all. Personality पे तो बाद में जाएंगे. Excellent writer. Poem was the main highlight, like sir said. ठीक है. एक चीज जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी, if you feel that you are not fluent in English, then you can go for Hindi. Okay. No, ma'am. What is the use of speaking in English and then not getting the words? Are you getting it or not? है ना? तो इससे बेहतर है कि आप जिस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो करिए, क्योंकि पता है, लेट मी कंप्लीट, क्योंकि जब मैम वाज आस्किंग यू क्वेश्चंस इन हिंदी, यू वर स्पीकिंग इन इंग्लिश. डोंट डू दैट इन द एक्चुअल इंटरव्यू. ठीक है, अगर जैसे ही आपसे बोर्ड मेंबर पूछ रहे हैं हिंदी में, ठीक है, यू इमीडिएटली स्विच टू हिंदी, नो मैटर व्हाट इज योर लैंग्वेज. ठीक है, आपने जो भी मीडियम चूज किया हो, अगर ऑनरेबल बोर्ड मेंबर हिंदी बोल रहे हैं तो आपको हिंदी में ही आंसर करना है. ठीक है, आप एक बार इस इशू को डिसाइड कर लीजिए कि वेदर यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी. ठीक है, और बाइलिंगुअल अगर है तो ठीक है. ठीक है, हिंदी में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रख सकते हैं चीजों को, क्योंकि बार बार बीच में उस चीज को हाईलाइट नहीं करना है कि कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, कैन आई स्पीक इन हिंदी. एक ही बार में आपका स्टैंड जो है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अदर देन दैट कोई दिक्कत नहीं है. आपने बहुत अच्छा मॉक इंटरव्यू दिया है, नॉलेज आपका बहुत सही है. ठीक है, एंड लास्ट इज एडवाइस, जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में साड़ी पहन के जाएंगे, Yes, है ना, प्लीज बटन अप योर कोट. ठीक है, ओके.